Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 23rd July and you can join us on our Telegram channel and the link is also given in the description box below. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover today. So here is the list is given and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to recent report on maternal mortality in India and the correct option here is B, that means MMR has declined over the years in India is correct, but MMR is number of maternal death per 1000 live birth is incorrect because maternal mortality rate is the number of maternal death per 1 lakh live birth, ना कि 1000 live birth. एंड एज पर WHO मैटरनल डेथ होती है वो डेथ जो वुमेन की हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट हो या फिर 42 डेज के अंदर अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है इतने में अगर किसी वीमेन की डेथ हो रही है तो उसको कंसिडर किया जाता है एज अ मैटरनल मॉर्टेलिटी. सो रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग MMR रेट जो है वो डिक्रीज हुई है और जो सदर्न स्टेट है वहाँ पे लोअर MMR रजिस्टर की गई है like in Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Now question number 2 is with reference to Global Multidimensional Poverty Index 2020 and the correct option here is A, that means the poverty index was released recently by United Nations Development Program is correct, but around 200 million people were pushed to poverty in India between 2005-6 to 2015-16 is incorrect. क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने लिफ्ट किया है ना कि पुश किया है एज मैनी एज 270 मिलियन पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी बिटवीन दिस ईयर और ये लार्जेस्ट है अमंग ग्लोबल स्टडी ऑफ 75 कंट्रीज. सो ये इंडेक्स 3 डायमेंशंस देखता है जिसके अंदर फर्स्ट है एजुकेशन, देन हेल्थ, देन लिविंग स्टैंडर्ड. बाकी इसमें आप डायमेंशन और इंडिकेटर दोनों देख सकते हैं. But you have to remember it is released by UNDP and developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative. Now question number 3 is with reference to Prasad scheme and the correct option here is A, that means it is aimed at integrated development of identified pilgrimage and heritage destination is correct and the scheme is an initiative of Ministry of Culture is incorrect because it was launched by Ministry of Tourism in the year 2014 and 15. Also, it envisages infrastructure development such as entry point, last mile connectivity, basic tourism facilities, etc. Now, question number 4 is the anti-apartheid revolutionary was awarded Nobel Peace Prize and Bharat Ratna for his service to humanity. So you have to identify the correct personality here and the correct option is C, that means Nelson Mandela. So ये फेमस हैं अपने एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशन के लिए जो उन्होंने किया साउथ अफ्रीका के अंदर और ये प्रेसिडेंट भी रहे साउथ अफ्रीका के फ्रॉम 1994 टू 1999 एंड वो अपनी कंट्री के फर्स्ट ब्लैक हेड रहे यानी कि उस स्टेट के ब्लैक हेड थे और फर्स्ट टाइम इलेक्ट किए गए फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन से एंड उनको इंडिया का भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पीस प्राइज भी. नाउ यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नेल्सन मंडेला के अलावा कौन फॉरेनर है जिनको भारत रत्न दिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज आजाद पटन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, दैट मीन्स पाकिस्तान एंड चाइना. सो ये जो प्रोजेक्ट है वो साइन किया गया है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान और ये एक 700 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है जो कि होगा झेलम रिवर के ऊपर एंड इन पीओके रीजन एंड ये सेकेंड पावर प्रोजेक्ट है अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. नाउ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इससे पहले कौन सा पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया या फिर साइन किया गया. Now question number 6 is recently basmati rice was in news. So here are the 4 statements given. Take a pause and choose the correct option. And the correct option here is A, that means statement 4 is incorrect.
क्योंकि एमपी को अभी इंक्लूड नहीं किया गया है जीआई लिस्ट के अंदर, यानी बासमती राइस के लिए इन एमपी इंक्लूडेड नहीं है। सो अभी तक ये जिन स्टेट को दिया गया है उसमें आता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट यूपी, एंटायर यूपी भी नहीं है, वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली, लेकिन एमपी अभी तक इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया। इनफैक्ट अगर इंक्लूड किया जाता है तो ये एक डिजास्टर्स स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर जीआई एक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर सिर्फ रेप्यूटेशन से मतलब नहीं होता है कि उस प्रोडक्ट को जीआई मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है ज्योग्राफिकल एरिया को रेप्यूटेशन मिले, यानी कि अगर प्रोडक्ट सिमिलर भी है जीआई प्रोडक्ट के तरह, फिर भी जो मेन सेंट्रल जो पार्ट है रिकॉग्निशन का, जीआई टैग देने का, वो होगा ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड। तो एमपी की डिमांड यही है कि उसके यहाँ जो बासमती है उसकी क्वालिटी वैसी ही है जैसी बासमती राइस बाकी 7 स्टेट्स में उग रही है, तो उसको भी जीआई टैग मिलना चाहिए। और काउंटर आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ये देती है कि ये ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, और अगर एमपी को ये टैग मिलता है तो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इसके लिए अप्रोच करेंगी। बट फिलहाल जीआई टैग इंडिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के, उन्हीं को मिला हुआ है। Now question number 7 is why annual floods are essential for the survival of Kaziranga, and you have to choose a incorrect statement here. So the correct option here is D, because all the given 3 statements are correct. क्योंकि ये एक रिवराइन इकोसिस्टम है और यहाँ पे फ्लड वाटर जो है वो एक फंक्शन की तरह रोल करता है कि वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड दे देता है फिशेज के लिए, एंड इससे जो वाटर बॉडीज है वो भी रिप्लेनिश होती रहती हैं। ऑल्सो जो फ्लड वाटर है वो हेल्प करता है अनवांटेड प्लांट जैसे कि वाटर हैकिंग, जो कि एक इन्वेसिव स्पीसीज है, उसको दूर करने में, उससे गेट रिड होने में हेल्प करता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर एनुअल फ्लड्स नहीं होंगी तो ये एरिया एक वुडलैंड की तरह बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रिसेंटली पेरियार स्टैचू वाज इन न्यूज, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट statement is Periyar statue is situated in Tamil Nadu's Coimbatore, और इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है, और इनके जो रिलीजियस व्यूज थे उनके अकॉर्डिंग ही इनको वॉल्टायर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और उनकी जो फिलोसफी थी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस थी, बट उन्होंने इसको एज अ रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया था। नाउ यू हैव टू आंसर, क्या वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे या नहीं। Now question number 9 is Global Terrorism Index released recently by which of the following organization, and the correct option is B, that means Institute for Economics and Peace, and ये इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो हेडक्वार्टर्ड है इन सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। Now last question is recently Birgunj was in news, so where is it located, and the correct option is A, that is in Nepal. So बिरगुंज को कहा जाता है एंट्री पॉइंट टू नेपाल and also gateway to Nepal. So that's all in our today's MCQs, and if you want to contact us, these are the details. Also subscribe our channel and like, comment, share the video, and if you want information regarding UPPSC examination and its test series, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day, and thank you.